Hello, sir. Hello. Is the audio and video clear? Yeah, perfect. Okay. Okay. Thank you so much for giving the time and opportunity, to have you on the podcast. My pleasure. Yeah. So, how is life right now, completing so many trainings of the NPA? So mixed feelings. So firstly, Hmm, happy that training is complete now, but hmm, hmm, much bigger challenges on the ground are waiting for us. So that excitement and also see till now we only had power and no responsibility. Now you will be hmm. responsible for many people's lives. So now comes the Ah, real game, real life, real politics. yeah. So, like, how many trainings you all need to go through throughout the session? Means for in this 2 years. See, it's a 20 months training, total 2 years. So Hmm, 4 months, if you hmm, remove the FC, it will be a 20-month IPS training. So in hmm, that, there'll be two phases. Phase one will be around 10 months or so, and hmm, phase hmm, two will be around 4 months, and 6 months is district practical training. So where you hmm, go to the district and you take up role of inspector, role of constable. So you get to do all the duties of the ranks below you. So you basically ah. what is actual policing. While in the So, academy, as hmm, it's more about laws, subject laws, criminology, investigation, and outdoor subjects. So indoor it's that, and outdoor we have, as you all know, horse riding, and we have basic obstacle, PT, swimming. So all we have 9 different subjects, tactics. ये सब होता है. okay. तो आपने जैसे अभी थोड़े थोड़े डिस्क्राइब कर रहे थे, what are the parts going to happen, but there's one thing I want to ask. Like, I was just looking at a video a few days back that I think you all also go through a mock drills, like वो riots में कैसे संभालना होता है, then that VIP, how to handling VIP crowds, and if you can describe anything like what the process goes on behind. सी हमारा एक मॉक ड्रिल्स होते हैं फॉर एग्जांपल Hmm, राइट आर सिचुएशंस व्हिच यू फेस इन डिस्ट्रिक्ट्स सो hmm, राइट्स का एक सीक्वेंस होता है लाइक मान लो आपने दिल्ली राइट्स में देखा होगा फायरिंग हुआ है hmm, बट फायरिंग के पहले बहुत होता है फायरिंग के पहले यू हैव टू ट्राई अ लाठी चार्ज यू हैव टू ट्राई वाटर कैनन्स यू हैव टू गिव hmm, वार्निंग तो एक सीक्वेंस hmm, होता है स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर दे कॉल इट एन एसओपी सो ये hmm, ये पूरा स्टेप्स होता है ये स्टेप्स के बाद ही हम you have to take firing. Firing is the last resort, measure of last resort. So ये mock hmm, drills में हमको ये सिखाता है पहले क्या करना है, दूसरा क्या करना, तीसरा क्या करना, एक तरीका से hmm, कैसे करना. So it's a proper procedure which we follow so that hmm. riots don't become violent always and police try to handle them in the most peaceful manner, relatively peaceful manner. And sir, what about the mental strategy goes on? क्योंकि जब सामने crowd, all angry and situation, so वो सब कैसे वो सिखाया जाता है कि वो personal experiences होती है? हर क्राउड का नेचर डिफरेंट होता है हमको ट्रेनिंग में सिखाते हैं हम्म, फॉर एग्जांपल जो इफ देट इज अ फार्मर क्राउड जैसे आपने दिल्ली में हम्म, देखा फार्मर प्रोटेस्ट हम्म, ये अलग होता है हम्म, एंड स्टूडेंट प्रोटेस्ट अलग होता है स्टूडेंट्स विल हम्म, बी हाई ऑन इमोशंस उनका पेशेंस हम्म, लेवल बहुत कम होता है सो उनका डील करना तरीका अलग होता है एंड द वे यू डील विद फार्मर्स इज अगेन डिफरेंट हम्म, फार्मर्स मोस्टली पॉलिटिकल पार्टीज एक्सेप्ट करता है सो हम्म, देर यू हैव टू हैंडल इट डिफरेंटली सो हर तरीका हर डिफरेंट डिफरेंट प्रोटेस्ट लेबर प्रोटेस्ट अलग स्टूडेंट प्रोटेस्ट कैसे डील करना है फार्मर हम्म, प्रोटेस्ट कैसे डील करना है एंड विमेन प्रोटेस्ट ऑल्सो कैसे डील करना है so everything is हम्म. yeah. And like due to COVID, is anyway training being changed in from any perspective? See it's not changed but हमारा थोड़ा आगे पीछे हो गया था so like for हम्म, example some attachments which we had to do in phase one हम्म, all of them we had to do again in phase two instead of phase one because phase one का time covid बहुत peak चल रहा था so we हम्म. could not do any of our attachments back then. Okay. So बहुत सारे लोग ना एक सवाल पूछ रहे हैं कि मुझे आईपीएस बनना है, मुझे ऐसे यूपीएससी क्रैक करना है, बट मैं इस सवाल को थोड़ा अलग लेवल से, मतलब अलग तरीके से आपको पूछना चाहता हूँ कि वी ऑल हैव अ गोल और एम इन लाइफ, राइट? हम सभी के फिक्स होता है कि मुझे ये करना है, वो करना है, बट आपके लिए वो क्लैरिटी किस दिन मिला था? आपके गोल तो ऑब्वियसली था कि मुझे ये करना है, बट वो क्लैरिटी किस दिन मिला था मुझे आईपीएस ही बनना है?
वो कैसे पता लगा, खुद को कैसे एक्सप्लोर किया आपने? सी जब मैं इंजीनियरिंग I was in BITS Pilani, so उस time I like taking anything which has responsibility, anything which has challenges, so anything which is diverse. So ये नहीं कि like my mentality, what I understood during my college years is not something which I can do before a computer or the same work every day, day in and day out. Even research profile, like some people are very interested, but I understood that this is not my cup of tea. So engineering का time when I was in college politics, college में कुछ leadership positions लिए थे. So that time only I understood that my career should be something like a leadership oriented, people oriented, something with responsibility, something with challenges. So उस time third year, I think third year middle, third year of my engineering. So उस time मैंने decide किया था that a regular career is not for me, and उस समय I'm very clear that I'll be going to civil services. ओके, एंड एक्सप्लोरेशन कैसे शुरू हुआ फिर, क्योंकि यूपीएससी, क्रैकिंग यूपीएससी इज अ लॉन्ग जर्नी, तो वो कहाँ से क्या पढ़ना है, कहाँ से क्या मतलब नोट्स कलेक्ट करना है, वो एक्सप्लोरेशन कैसे चालू हुआ फिर? See, exploration ये सब हमने नहीं किया था. Like I always had this thing in 4 साल का इंजीनियरिंग होता है एंड यूपीएससी एक पद्मव्यूह जैसे प्रिपरेशन सिविल सर्विसेज. सो ये 4 साल अच्छा से एंजॉय करना है, डू एवरीथिंग इन दिस 4 years. आफ्टर दैट जो पढ़ना है जो करना है वो बाद में कर सकते हैं. तो माई 4 years आई डिड नॉट डू एनी प्रिपरेशन फॉर यूपीएससी. सो हमने बस व्हाट आई जस्ट डिड वाज रेड न्यूज़पेपर्स, नॉट लाइक यूपी एक एस्पिरेंट तरह नहीं, normal like for example editorials, just knowing things around you, or curiosity builder. So engineering, I if any aspirants are there also, I'll tell them very strongly no need to prepare during your graduation, enjoy your graduation, do well, fun. ये टाइम कभी नहीं आए. बीइंग अ इंजीनियर, मैं ना आपको बहुत अच्छे से समझ सकता हूँ. इंजीनियरिंग कुछ सिखाए ना सिखाए, एक चीज जरूर सिखा देता है कि पूरे सेमेस्टर एंजॉय करके सेमेस्टर क्रैक कैसे करना है. That's right. So happily. हाँ, तो सर जो कुछ थोड़ा अटैचमेंट्स के बारे में बताइए आपके ट्रेनिंग के प्रोसेस में. बहुत सारी यू ऑल गो थ्रू लॉट ऑफ अटैचमेंट्स, लाइक आई नो लाइक यू बीन टू द सीआरपीएफ अटैचमेंट एंड एनी अदर, इफ यू कैन एक्सप्लोर. See, attachments, say, for example, last week I was in Ahmedabad. So there we had an attachment with National Forensic Science University. We had एक हफ्ते का था. So उसमें हमको practically forensic हमने academy में भी पढ़ा है, but वो सब theoretical था. So उधर क्या है, they'll teach you एक ड्रग मिला है आपको, फॉर एग्जांपल गांजा मिला है, नहीं तो हेरोइन मिला है, तो उसको पहले प्रिलिमिनरी टेस्ट क्या होता है, कंफर्मेटरी टेस्ट क्या होता है, कैसे टेस्ट करते हैं. एंड फॉर एग्जांपल ए पर्सन इज देयर, आपको शक है वो ड्रग्स लिया है. सो एक ड्रग का एक एक बॉडी पार्ट में, फॉर एग्जांपल हेयर, आपने ड्रग्स लिया तो हेयर, व्हेन यू टेक ए हेयर सैंपल 15 दिन तक यू कैन बी कॉट और यू विल ट्रेस कैन बी फाउंड दैट आपने ड्रग्स लिया है. सो ऐसे देयर बी डिफरेंट वेज ऑफ आइडेंटिफिकेशन ऑफ ड्रग्स एंड डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में कितना कितना बॉडी, ये बॉडी फ्लूइड में कितना दिन तक होता है, उधर कितना दिन तक होता है, ये सब. सो एनडीपीएस का एंड फोरेंसिक क्राइम सीन कैसे एक्चुअली करते हैं, एंड बैलिस्टिक इन्वेस्टिगेशन, लाइक व्हेन वी वेंट टू गुजरात, उधर एक वी हैड ए बॉम्ब वेस्ट, लाइक बुलेट प्रूफ वेस्ट selection testing one. So there you see how bulletproof vests are actually made. So ये सब होता है. So that is one attachment. Prior to that I was in Chhattisgarh. So उधर we had the CRPF attachment. So उधर क्या सीखा, like we learned anti-Naxal. Ambush क्या होता है. Like recently also there was an ambush of a few jawans in Chhattisgarh. So ambush क्या होता है, and raid क्या होता है, how to deal with ambush, IEDs के से कैसे बचना है. So all हमारा सीआरपीएफ जवानों का प्रॉब्लम्स क्या है, उधर टफ कंडीशंस में काम कर रहा है. So ये सब. And before that we had CRPF Jammu and Kashmir. There again it's a different theater. Jammu and Kashmir में कैसे होता है, प्रॉब्लम्स कैसे डील करना होता है. And then CSWT एक होता है इंदौर में, सेंट्रल स्कूल ऑफ वेपन एंड टैक्टिक्स. तो उधर हमने जो भी इंडिया में बेस्ट वेपन्स है सब हमने फायर किया है. Rocket launcher, grenades, and UBGL, under barrel grenade launcher. So we fired everything. So
these are the some of the important attachment. और एक greyhounds attachment है. There it's like jungle survival. एक हफ्ते you go to jungle and you'll have minimum resources. So वो resources से you have to survive. So that was my favorite attachment because there you know हम कैसे minimum water, minimum food, no phone, no social media, nothing. ये सब से like when you don't have anything, how do you survive? So that's one best thing. Okay. तो someone was asking a question, मैं वही repeat करूंगा आपको. तो उसने पूछा कि I have completed my graduation from Open University, so can I go for UPSC? See, UPSC क्या बोला था, सिर्फ एक डिग्री चाहिए आपको, ये नहीं कि चाहिए या डायरेक्ट कॉलेज में अटेंड किया, it doesn't matter. Even if you do most basic degree, you take BSc Home Science. My mother did that, so you can do that also. It doesn't matter. Any degree you can do. So it's not कि you have to go to a good college. And there are so many people like when I got a rank for the first time, information service जब मुझे मिला था, उस time there was उसने ओपन यूनिवर्सिटी में पढ़ा था, बीएड किया था वो भी, एंड ही वाज एज अ टीचर, उसको ही गॉट रैंक 3. सो इट्स नॉट दैट कि आईआईटीज या बिट्स या एनआईटीज ये लोग को एज मिलता है. या वी हैव प्रीलिम्स में थोड़ा एज मिलता है, बट मेंस इज अ लेवल प्लेइंग फील्ड, सबका सेम होता है. ओके. एंड सर, योर मोटिवेशन इन द सेंस कि जैसे आपने बताया ना कि पहली बार जब यूपीएससी क्रैक किया उसके बाद दोबारा आपने दिया, सो व्हाट वाज योर मोटिवेशन कि नहीं मुझे दोबारा करना है, क्या चलता था? मेरा मोटिवेशन सिंपल था. सी, आई ऑलवेज बिलीव दैट योर बिजनेस इज विद द डीड, नॉट विद द रिजल्ट. सो दिस वाज टोल्ड इन भगवद गीता में भी यही बोला. सो आपका काम आप बेस्ट देना है, उसके बाद रिजल्ट आप नहीं करना. सो मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट में मैंने बेस्ट नहीं दिया था. सो आई थॉट दैट व्हेन आई हैड नॉट गिवन द बेस्ट, क्यों छोड़े. सो जब दूसरा अटेम्प्ट दिया था, आई डिड वेल. सो माय मोटिवेशन वाज, तुम्हारे पास पोटेंशियल है एंड कैपेबिलिटी है एंड यू हैव नॉट परफॉर्म टू योर बेस्ट कैपेबिलिटीज, सो व्हाई नॉट डू इट. सो दिस वाज माय मोटिवेशन. ओके. एंड लाइक इंजीनियरिंग करने के बाद नेचुरली लोगों का एक वो होता है ना टारगेट की जॉब लेना है, तो वो फेज भी एक थोड़ा स्ट्रगलिंग चलता है क्योंकि यू हैव सीन योर फ्रेंड्स गॉट इनटू जॉब एंड कोई सेटल हो गया, तो उस टाइम पे पर्सनल लेवल पे कभी डिस्ट्रैक्टेड नहीं फील होता था? See, like even from childhood, I was a good student always. So वो problem नहीं, distraction का काम नहीं था. But see, you will not have, आपको distraction तब होता है when you're not clear. So मेरा मकसद clear था. I want to clear civil services examination और मेरा backup plan होना चाहिए, but उस time मैंने नहीं सोचा. So I gave myself 2 years. So 2 years हम prepare करेंगे, अच्छे से 2 attempt देंगे. उसके बाद don't clear, then I'll go back to my mechanical engineering. So that's why मैं जो भी aspirants देख रहे हैं वो लोग को भी यही बोलता हूँ, आप graduation अच्छा से करें, अच्छा से GPA बनाओ और do have good credentials. So when you have credentials, UPSC ये civil service examination एक तरह का gamble है. So it's not सबको मिल सकता है and it's not compulsory that hard work will always give result. हमारा hard work हम देना definitely आएगा, but कुछ लोग है जो हार्ड वर्क के बाद भी नहीं मिलता है. दिस एग्जाम इज लाइक दैट. सो आपके पास अच्छा बैकअप प्लान होना चाहिए एंड दैट शुड बी योर ग्रेजुएशन. सो आप ग्रेजुएशन अच्छे से. एंड a lot of people are questioning current affair आपने कहाँ से किया था? What from where you used to study? See, current affairs में हिंदू पेपर में अच्छे से पढ़ते थे. लाइक हिंदू पेपर एंड इंडियन एक्सप्रेस में देयर इज अ सेक्शन कॉल्ड एक्सप्लेन. सो यू रीड दैट एंड यू आल्सो डू हिंदू पेपर प्रॉपर्ली. मतलब सी, न्यूज़पेपर ऐसे स्टोरी बुक जैसे नहीं पढ़ना है. पहले आप प्रीवियस क्वेश्चन पेपर्स देखो. क्वेश्चन पेपर्स में करंट अफेयर्स का क्वेश्चंस कैसे आ रहे हैं वो एनालाइज करना है और प्रीवियस प्रीलिम्स पेपर्स देखना है. सो एंड सिलेबस मेमोराइज करना है बाय हार्ट. ये सब करने के बाद यू हैव टू थिंक. सी, when you do paper analysis, आपको समझ में आएगा like UPSC loves थोड़ा committees, reports and international organizations and wild animals and endangered status, IUCN status. So these are some areas which UPSC loves and ये current affairs में आता रहता है. So when you understand the question paper and the syllabus, आपको आसान होगा current affairs कैसे पढ़ना है. So मेरा simple था, around 1.5 to 2 hours I was reading newspaper and जो month
बुक्स आता है और जो एनी कोचिंग इंस्टीट्यूट, विजन आईएएस, मेरा टाइम में विजन आईएएस बहुत अच्छा था, सो आई वाज रीडिंग दैट. सो विजन आईएएस का मंथली बुक आता है, सो आई यूज्ड टू रीड एट द एंड, ये आफ्टर द मंथ इज ओवर. सो यू रीड द न्यूज़पेपर. कुछ लोग कैसे करते हैं, न्यूज़पेपर छोड़ देते हैं. सी ऐसे कभी नहीं करना. न्यूज़पेपर यू is not something which is replaced by current affairs booklet. So ये भी करना है, वो भी करना. You cannot replace one by the other. Okay. एंड सर जैसे आर्मी सिलेक्शंस में बहुत सारे अलग प्रोटोकॉल्स होते हैं ना, जैसे फिजिकल प्रोटोकॉल्स, ये नहीं फ्लैट फुट, ये सब नहीं होना चाहिए, तो वो फॉर द आईपीएस और यूपीएससी के लिए भी है, होता है किसी के लिए? आईपीएस के लिए होता है, बट दो चीज मेन चेक होता है, बाकी सब इतना चेक नहीं करते हैं. सी कलर ब्लाइंडनेस नहीं, लाइक ये गर्ल्स का प्रॉब्लम नहीं है, गाइस का मदर से आता है ये कलर ब्लाइंडनेस, मदर से दैट क्रोमोसोम से आता है. सो जस्ट आप ऑनलाइन एक कलर ब्लाइंडनेस टेस्ट ले लीजिए ऑनलाइन. जस्ट टाइप कलर ब्लाइंडनेस टेस्ट ऑनलाइन. सो ऑनलाइन इट विल शो, then you'll know whether you have color blindness or not. And the second one is guys should be minimum 165 centimeters height. So these two are the main criteria. See बाकी सब tattoo, E2, these are not that important. Flat foot check करते हैं, but and something called knock knee or something. So ये सब check करते नहीं, आर्मी इतना strictly check नहीं करते, but करते हैं check. But main ये बोला ना, color blindness is one defining thing, and the second one is this. Okay. एंड एक चीज, मतलब बहुत लोग एक्साइटेड रहता है कि एक फॉर्मल डिनर होता है ना आप लोगों को, आई थिंक ड्यूरिंग द ट्रेनिंग. सो व्हाट इज दैट बेसिकली? See, it's nothing. It's a British legacy. जो ने उस टाइम करते थे, so that is still continuing. So उस टाइम क्या will be in formals. So all of us will be sitting and will be given soup. Soup भी एक तरह से पीना होता है. You cannot have it whichever you want. So I'm. अच्छा, वो जरूरी है? हाँ जरूरी है वो. They just teach you. It's, I told you ना, it's a tradition आ रहा है. So soup भी ऐसे ऐसे, it's not like this. ऐसे you have to have it. And food proper, what do you say, all English style. कैसे fork किस हैंड में पकड़ना, किस हैंड में नाइफ पकड़ना है. So हम करते हैं, इंडियन सब लोग ऐसे खाते हैं फोर्क से. फोर्क से ऐसा नहीं खाना है, ऐसे खाना है. So ये सब मैंने अकेडमी के बाद ही हमने सीखा है. बट इट्स ओके, इट्स जस्ट ए फॉर्मेलिटी, वो इतना काम नहीं आता. ओके. एंड टिप्स फॉर हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स? सी टिप्स नहीं है, आप प्रॉपर सिलेबस अच्छे से पढ़ लीजिए. लाइक मेंस, हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स का मेन प्रॉब्लम है कि प्रीलिम्स पास करना मुश्किल है. सो आप लोग प्रीलिम्स थोड़ा अच्छा से केयरफुली यू हैव टू प्रिपेयर. सो फुल टेस्ट ज्यादा देना, एंड जो भी आप क्वेश्चन पेपर्स दे रहे हैं, ट्राई टू लर्न फ्रॉम देम. लाइक ये नहीं कि हाँ आपने 100 मॉक टेस्ट दिया है, 200 मॉक टेस्ट दिया है, ये सब नहीं है. जस्ट ट्राई टू गिव अराउंड 25 to 30 देना है. और जो 25 to 30 में फॉर एग्जांपल आपको 70 मार्क्स आया, 80 मार्क्स आया, सो बाकी 120 मार्क्स कहाँ आपने छोड़ा, या वेयर डिड यू लूज इट. सो ये सब देखना है और उससे सीखना है. सो मेरा इस सब्जेक्ट में गेसिंग अच्छा जा रहा है, इस सब्जेक्ट में अच्छा नहीं जा रहा है. सो ये सब आप एनालिसिस करना है. सो प्रीलिम्स इज ऑल अबाउट स्ट्रैटेजी. प्रीलिम्स ये नहीं कि 10 घंटे. सी मेंस कैसे है, आप कितना हार्ड वर्क डालते हैं प्रोपोर्शनेटली आपको रिजल्ट मिलेगा. बट प्रीलिम्स ऐसे नहीं है. प्रीलिम्स थोड़ा दिमाग से थोड़ा स्ट्रैटेजी बनाना है, अच्छे से गेस करना है, और मॉक टेस्ट में टाइम कैसे सेव करना है, यू शुड नो. सो ये सब अदर थिंग्स आर मोर इम्पोर्टेंट देन दिस थिंग. ओके. तो सर एक लास्ट क्वेश्चन लूंगा, बहुत लोगों ने ये चीज पूछा भी है, तो कि एक रहता है ना कि कौन से कोचिंग में जाना है, क्या कहाँ से पढ़ना है, कौन सा किताब सिलेक्ट करना है. और आज के जमाने में मार्केट में कुछ ज्यादा ही अवेलेबल है ना. एक टाइम होता था जब कुछ नहीं मिलता था, बट आजकल कुछ बहुत ज्यादा ही अवेलेबल है. तो आपका मतलब आपका एडवाइस क्या रहेगा कि हाउ टू चूज द राइट थिंग एंड गो फॉर यूपीएससी? सी राइट थिंग मतलब क्या, कोचिंग इंस्टीट्यूट बोल रहे हैं या ऑप्शनल, लाइक राइट व्हाट? नहीं, इंस्टीट्यूट्स और कहाँ से पढ़ना है हमें पर्टिकुलरली. सी प्रीलिम्स कैसे पढ़ना है, जो आई हैव गिवन इट इन माय ब्लॉग. जस्ट मेरा नाम टाइप करना, जी चंदीज आईपीएस ब्लॉग. सो प्रीलिम्स एग्जैक्टली क्या बुक से क्या पढ़ना है मैंने डिटेल मैनर में दिया है, सो दैट यू कैन डू. सो मेंस आई कुड नॉट फाइंड टाइम.
So I'll write it soon. 10 days में I'll write a detailed article on mains. Then you can see my main strategy also. But prelims को तो I have given detailed. किस book से क्या पढ़ना है, किस subject में क्या पढ़ना है. See, coaching, see, during 2010, 2011 और मेरा भी 2015, उस time 2016, so that time coaching का requirement बहुत ज़्यादा था because इतना digital revolution नहीं था जितना अभी online courses आया, online insights academy, अन academy बहुत आया अभी online courses. So अभी आपके पास थोड़ा motivation अच्छा है and time भी अच्छा है, so online कर सकते हैं. It's not at all a big deal. कोचिंग इतना कंपलसरी नहीं है पहले जैसे नहीं. एवरीथिंग इज ऑनलाइन. सो ओनली थिंग इज लाइक फॉर एग्जांपल हु हैव ऑलरेडी पास, लाइक मैंने ऑलरेडी एग्जाम पास किया है, सो मैंने एक स्ट्रैटेजी दिया है. सो जैसे टॉपर्स होता है, सो यू चूज अ स्ट्रैटेजी एंड बेस्ड ऑन दैट यू प्रिपेयर योर्स एंड यू कैन डू इट. कोचिंग नॉट एट ऑल कंपलसरी. एंड आजकल कोचिंग बहुत कॉस्टली भी हो गई. लाइक मेरा टाइम, दैट टाइम ओनली इट वाज सम 1 लाख और 80,000. अभी 2 लाख, 1.5 लाख, 3 लाख. इट्स नॉट एट ऑल. You can do it on your own. और ये कहावत कहा जाता है कि ये जो बहुत पढ़ाई लिखाई में अच्छा होता है वही यूपीएससी क्रैक करता है. ये सच है कि एनीबडी सीरियस कैन डू इट? No, no, like see, there was one person in my college, senior, like मेरा GPA अच्छा college में, I got 8.6 out of 10. Like there is a peer of me उसने just pass किया, उसका 4.1 या 4.4 is pass. So मतलब मेरे से 5 साल पहले उसने IAS, sorry 3 साल पहले IAS ही क्रैक किया. So he was one of the poorest student in BITS Pilani, which is one of the premier institute. But उसने IAS क्रैक किया. So it's nothing like that. Okay. So thank you so much, sir, for giving the time and opportunity. I think this will help a lot of aspirants in their preparations. Sure. And see you soon, sir. Thank you. Yeah.